Okay. So in the last session, we have started with a new chapter. I think last to last session, we have started with this chapter that is mobile networking, and we saw different topics which are there in this chapter. Okay, so targeting the first module or the first, we can say, uh, section, that is medium access control. In that, we learn about how we got motivated for the specialized Mac, because the Mac we were using in the wired network was not suitable for the wireless network. And right now in the MCC domain, that is mobile network, mobile computing and communication, so all the things are right now like wireless. Okay, so for this wireless arrangement, we must have some, some mechanism, some, special medium access control protocol which can handle the shared medium. Yeah, which can handle the access of shared medium. Okay, which can in the wireless domain, in the wireless network. Okay, so we got motivated and we came to, and we come with that particular specialized Mac, and the specialized Mac was MACA. Okay, in the wireless domain, when multiple stations, multiple mobiles are working, then we faces with numerous issues, like we discuss about those issues, like hidden terminal problem, exposed terminal problem, and the near and far terminal problems. Okay, so in order to solve these problems, okay, in exam this question is asked like, what are these problems, like hidden terminal and exposed terminal problem, and how to resolve this issue. Okay, yeah, how we can resolve this issue using MACA. Okay, so the question can be asked in many forms. Okay, so if the question is asked regarding this near and far, sorry, this one, that is hidden and exposed terminal problem, and if it will ask you to solve this issue, then you need to consider that you need to write about the MACA also, that is MACA. Okay, so the question can be asked from this. Okay, the question can be asked from these topic, like hidden terminal, exposed terminal, near and far terminal, and how we can resolve these issues using MACA. Okay, so one question is there from this topic. अगर question आया तो इसमें से आता है. Okay, so let me revise you the situation or the scene what we have seen in the hidden and exposed terminal problem, that we consider multiple stations and multiple mobile phones. Okay, so this is my one station A, station B, and station C. Okay, station A has the transmission range. Station A has the transmission range up to the B. Okay, and C has the transmission range up to B. Okay, दोनों की transmission range same है, दोनों का distance भी same है. Okay, and your B has a transmission range up to A and C. Okay, obviously इतना तो होगा. तो तीनों की जो transmission range है, the transmission range for all the stations are same. Okay, as you can see in the diagram. Okay, so what was the scenario that if A wants to send some data to B. Okay, if A wants to send some data to B, then it will start transmitting. Okay, at the same time, if C also wants to send some data to B, this is, we are talking about the wireless domain. Okay, we are talking about the wireless domain. So A wants to send some data or wants to transmit some data to uh, B. Okay, and C also wants to send some data to D. तो ए और सी दोनों के दोनों बी को डेटा सेंड करना चाहते हैं, बी को डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं. जब दोनों एक ही को डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, देन यू नो दैट द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ ए इज अप टू बी ओनली. ओके, तो उसकी पहुंच यहाँ तक है, इसको तो ट्रांसमिट कर रहा है. लेकिन जब ये ट्रांसमिशन करेंगे और जब इसका भी सिग्नल आएगा, सो दोनों के सिग्नल क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, एंड इन दैट रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द सिग्नल विल बी लॉस्ट. ओके, आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, corrupt हो जाएगा, and the signal cannot be received by the receiver because it's a corrupted signal, and we know that the corrupted signal will not be accepted by the receiver. Okay, so a terminal is hidden, a terminal is hidden for C because C को मालूम नहीं कि यहाँ A बैठा हुआ है, and A भी जो है ना तो B को सेंड कर रहा है. Okay, और C जो यहाँ बैठा है और A जो यहाँ बैठा है, A के बारे में C को नहीं पता. ओके,
So A is hidden for C and C is also hidden for A, vice versa. Okay. So this is the hidden terminal problem. In the next term, in the next, because why I am repeating these issues, because we have to solve these issues, and until and unless we revise the thing, that is what is hidden and exposed terminal problem, then we cannot resolve this issue. Okay. So ये रीजन है, मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूँ. सो हिडन टर्मिनल समझ में आया, ए एंड सी आर हिडन फॉर ईच अदर. ओके. उसके बाद में एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम. Regarding this exposed terminal problem, this is the situation that A wants to send some data to B terminal is sending or is transmitting some data to A. Okay. तो B A को send कर रहा है and C wants to send C is transmitting some data to any other station. Okay. जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ. तो यहाँ पर एक, so we have one terminal over here, that is B maybe. Okay. So B is sending to A. Okay. And C is sending to D. Okay. जब ये situation है, so in that case C का जो transmission range है, इसकी जो range है, it is up to B. And when B is sending or B is transmitting the data to A, then जब ये बाद में सेंस करेगा, तो सेंस करने में भाई साहब जब सेंस करेंगे तो पता चलेगा कि बी तो सेंड कर डेटा. ओके. मतलब कि जो मीडियम है वो भी बिजी है. ओके. what C will come to know when C will start its transmission to the D. when C will start transmission to the D, हालांकि C का इनसे कोई लेना देना नहीं है, but when C will start transmission to the D terminal, then when it sends the medium, then it found that the medium is busy. How it will come to know that the medium is busy? Because B is transmitting to A. Okay. और अगर कभी ये C वाला D को ट्रांसमिट करे तो उससे कोई इशू नहीं. Okay. So here what is doing, what B is doing, B is exposed to C. Okay. So B जो हमारा टर्मिनल है, it is exposed to C. तो ये B अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, इसीलिए C D को सेंड नहीं कर पा रहा है. ओके. अगर ये अपने आप को सेंड नहीं करेगा, सॉरी, अगर अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगा, तो C will be able to send the data to the D. Okay. So in this scenario, your B terminal is exposing itself. Okay. So B terminal is the exposed terminal. Okay. And cause of this problem, it will not start its transmission. So C will not start its transmission to the D. Okay. जो कि हार्मलेस है, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि उसको मीडियम बिजी लग रहा है. ओके. सो दिस इज द एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम. आई होप यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स विद मी. ओके. वाई ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू डू द मैकअप. ओके. मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, the specialized MAC in the specialized medium access protocol, specialized medium access protocol for wireless network. Okay. ये हम लोग सारा वायरलेस के लिए इतना सारा कार्यक्रम करते हैं. Okay. Then the near and far terminal. So the very basic concept behind this near and far terminal is that जो नज़दीक है उसको उसको मतलब अच्छे से समझ में आएगा मेरी बात, और जो दूर है तो उसको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, या मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचते पहुँचते तक दूसरे साउंड में और नॉइज़ के अंदर ऐड हो जाएंगी, और उसको आवाज़ मेरी समझ में या तो नहीं आएंगी, या तो आएंगी तो बहुत कम आएंगी, उसमें काफ़ी सारा नॉइज़ भी एडेड रहेगा, और मतलब और आई तो भी बहुत थोड़ी बहुत आएगी. ठीक है. सो जो आपके नियर एंड फार टर्मिनल, दैट्स वेरी कॉमन. ओके. So near and far terminal. So we have these three problems we are going to solve. So we are going to solve these issues with the help of MACA. Okay. Now let us move to the MACA. That is multiple access with collision avoidance. We were talking about that specialized MAC. I just specialized MAC. Okay. So the motivation why ये क्या चीज़ ने हमको मोटिवेट की है कि हम लोग एक स्पेशलाइज मैक को ढूंढ रहे हैं. ठीक है. बिकॉज वी नो दैट कि हमारा जो CSA में है वो हमारा इस पे काम नहीं करता है. हमारा किस पे, हमारे वायर्ड के ऊपर काम करता है, वायरलेस पे काम नहीं करता है. तो वायरलेस पर काम करने के लिए वी नीड वन स्पेशलाइज मैक वी वर सर्चिंग फॉर. ओके. एंड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड after a lot of things and to work out, we got this specialized MAC as a MACA. Okay.
Now let us start with the MAC. Now you need to focus. We are starting our actual topic. हमको हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. काफ़ी टाइम हुआ लेकिन ये रिवाइज करना भी ज़रूरी था. Okay. So I hope all are getting the things and you people have understood about the issues what we are facing in the hidden terminal, exposed terminal and near and far terminals. Okay. पहले मुझे देखने दो are you people getting or not. Responses are mandatory. You must respond for the same so that I will come to know that you people are getting the things. Okay. So let us start with. That's very good. So let us start with the MACA. Okay. So multiple access with the collision avoidance. So this is the protocol which is going to work in the wireless domain. Okay. So my multiple access with collision avoidance, that is MACA. I will name it as a MACA. Okay. So it presents a simple scheme that solves the hidden terminal problem. So we have a very simple scheme. अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग बोलेंगे सर कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है. ओके. आपको खाली दो टर्म्स याद रखना है. दो टर्म्स की मदद से आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके. It does not need a base station and it's still a random access Aloha scheme but with dynamic reservation. So basically the concept is that यहाँ पर कोई दूसरे कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक डायनामिक रिजर्वेशन का है. डायनामिक रिजर्वेशन कोई स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक रिजर्वेशन. So whenever a terminal or station is sending or transmitting some data then उसको थोड़ा सा डायनामिक रिजर्वेशन करना पड़ता है. तो कैसे करना पड़ता है that we'll see. Okay. So the scene और the situation जो हम लोग है उसको मैंने वापस से यहाँ पे लिखा हूँ बिकॉज वो करने के बाद में वापस से हमको सीन समझना. रिमेंबर ए एंड सी बोथ वांट्स टू सेंड द बिल. जो सिचुएशन हम लोग ने अभी समझी है वही सिचुएशन मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट किया सो दैट एक बार वापस से रिवाइज हो जाए. ए बी सी, ए बी को सेंड कर रहा है, सी भी बी को सेंड कर रहा है. ए एंड सी बोथ वांट्स टू सेंड टू द बी. ओके. सो दिस इज द सिनेरियो. A has already started the transmission, B is hidden for C and C also started with its transmission, thereby causing a collision at B. So A, C, A भी B को भेज रहा है, C भी B को भेज रहा है, दोनों एक साथ भेजेंगे B पे तो कोलिजन हो जाएंगे. और जब कोलिजन होगा आपका डेटा लॉस्ट होगा, रीसेट करना पड़ेगा, डिले होगा, प्रोपगेशन डिले. ओके. तो इसको हमको करना नहीं, हमको इसका सोल्यूशन निकालना है. ठीक है. So we have a solution using MACA. Your MACA can avoid hidden terminal problem. We have seen this जो रेजोल्यूशन है तो ये आप रेजोल्यूशन आपने पहले भी देखा, दैट इज आरटीएस एंड सीटीएस. आपने पहले भी सीएल में पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल में आप लोगों ने एब्सोल्युटली आप लोगों ने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा. ठीक है. So we have a very simple scheme. Okay. Now what is this scheme? RTS and CTS. RTS stand for request to send. CTS stand for clear to send. Everyone please focus on this point and on this topic because ये दो point अगर आप याद में रख लिए so this is very simple for you. You can avoid this issue. Okay. So what we have to do with MACA, A does not start its transmission at once. A को send करना है लेकिन ऐसे नहीं करेगा but sends a request to send RTS first. Okay. So whenever, for example, we are considering the same situation in which the terminal A wants to transmit the data to B और C को भी भेजना है ना, A B को भेजना चाहता है और C भी B को भेजना चाहता है, तो वही सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं. तो A और C, A ने पहले स्टार्ट किया तो इसको बोलेंगे भाई सबसे पहले तो परमिशन मांग. ठीक है. तो परमिशन मांगने के लिए आपको एक छोटा सा सिग्नल भेजना पड़ेगा, छोटा सा पैकेट भेजना पड़ेगा, दैट इज द आरटीएस सिग्नल. ओके. आरटीएस इज नथिंग बट द रिक्वेस्ट टू सेंड. मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ सेंड करना चाहता हूँ, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. सो आरटीएस. ओके. So your terminal A will transmit the RTS signal to the terminal B. Okay. क्या होता है? We receive the RTS that contains the name. अच्छा इसमें देखो ये वाइवा क्वेश्चन है, ध्यान से. Okay. RTS that contains the name of the sender and the receiver. Name of the sender, name of the receiver. कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है. As well as the length of the future transmission. ट्रांसमिशन की लेंथ क्या है, कितना डेटा है, कितना टाइम लगने वाला है, वो भी लेंथ रहेगी. ठीक है. So RTS contain all this information. If the RTS is not heard by C, now this RTS is not heard by C, इसका मतलब ये कि अब ये जो RTS है, because you know the transmission range of A, the transmission range of A is up to B only. So this RTS signal will not be heard by C. ठीक है. तो C को मालूम नहीं कि A ने RTS मतलब रिक्वेस्ट डाल के रखा है, एप्लीकेशन डाल के रखा है B के पास में. So C is not having any idea about the RTS signal sent by the A to B. Okay.
but triggers an acknowledgement from B called clear to send. So कि यहाँ पर अब जो B अब A को क्या मिलेगा, इन रिजल्ट क्या मिलेगा, CTS मिलेगा, दैट इज द क्लियर टू सेंड, कि भाई रास्ता क्लियर है, आप सेंड कर सकते हो। ओके, दिस CTS सिग्नल विल बी सेंड बाय B टर्मिनल टू A। ओके, तो ये दोनों का एक हैंड चेकिंग हो गया, एंड यू नो व्हेन हैंड चेक्स कंप्लीट देन यू कैन स्टार्ट द डेटा ट्रांसमिशन। ओके, तो जब हैंड चेकिंग कंप्लीट होता है देन यू कैन स्टार्ट द डेटा ट्रांसमिशन। सो योर टर्मिनल ए हैज सेंड द आरटीएस। ओके, योर टर्मिनल हैज सेंड द आरटीएस, इसको भेजा है, और भेजने के बाद में फिर आपके बी ने सीटीएस इसको भेजा है। ओके, अब यहाँ पर देखो, द सीटीएस अगेन कंटेन्स द नेम ऑफ द सेंडर। हाँ, the CTS again contains the name of the sender. Okay. The CTS again contains the name of the sender A and the receiver B of the user data and the length of the future. वही सारी चीजें इसके अंदर भी होती है। और क्या बोल रहा है, the CTS is now heard by C and the medium for future used by A is now reserved for the duration of the transmission. अब देखो, आपका जो CTS है, जब CTS जब B इसको CTS सेंड करेगा, when B terminal will send the CTS, यानी कि उसको जब रिस्पॉन्ड करेगा, तो you know the transmission range of B, you know the transmission range of B, this is up to A and up to C, मतलब उसकी रेंज उसके हाथ दोनों तक है, मतलब उनके हाथ लंबे हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों जगह पहुंच सकते हैं। जब दोनों जगह पहुंच सकते हैं, so the CTS signal will be heard by A also and will be heard by C also। ओके, अब सी ने तो कोई रिक्वेस्ट भेजा नहीं था, ठीक है, इसके लिए जब CTS उसको मिलेगा तो उसमें CTS में क्या होगा, नेम ऑफ द सेंडर, नेम ऑफ द रिसीवर एंड द ड्यूरेशन। ओके, ये CTS उसको क्यों भेजा गया है, सी जब सी को मिलेगा, when C terminal will receive this CTS then it will check the CTS। okay, and in that, you know what is there inside the CTS, in CTS there is the name of the sender, who is the sender, the sender is A। okay, who is the receiver, who is the receiver, the receiver is B। okay, and the duration amount is 5 minutes। okay, तो सी को समझ में आ गया, यानी कि सी को एक मैंने क्या बोले ना, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन चलेगी कि भाई देख अभी सेंडर जो है तो वो ए है और रिसीवर बी है, और इनका ड्यूरेशन 5 मिनट तक इन लोग जो ना ट्रांसमिशन करने वाले हैं, मतलब 5 मिनट तक मुझे कोई भी हरकत नहीं करनी है। ओके, सो जब ये सिग्नल हमारे सी भैया को पहुंच गया, तो सी भाई साहब हमारे 5 मिनट से पहले कुछ करेंगे नहीं, करेंगे ना, जब नहीं करेंगे तो कोलिजन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। अच्छा, पहले क्या हो रहा था हमारा, just try to compare the situation in the previous situation, both the signal were coming from A and C to the B and it was clashing। okay, it was clashing like anything and the things were आपका जो frames थे, आपका जो data थे, it is getting collided and data lost। okay, तो वो अब नहीं हो पाएगा because only one is doing। okay, I'm repeating this MACA protocol again। okay, in this we are going to use two signal, one is RTS signal, second is CTS signal। what is RTS signal? RTS is the request to send. And what is CTS? CTS is the clear to send। okay, whenever any station wants to transmit the data, then first of all it has to send the RTS signal to the receiver। सबसे पहले RTS signal भेजेगा। okay, when RTS signal will be received by the receiver, then in response of that RTS signal the receiver will send the CTS signal। okay, the CTS signal to all the terminal which comes under its transmission range। okay, तो unfortunately या fortunately your C terminal was present in the transmission range of the B। तो आपका जो C था वो B की ट्रांसमिशन रेंज में था। यू कैन सी दिस इज द ट्रांसमिशन रेंज। तो व्हेन जब B, यू नो, हम लोग कंसिडर कर रहे थे, ए भाई साहब B को भेजना चाह रहे हैं, देखो एरो कितना टेढ़ा गया। A was sending the data to B, so this it was the C। okay, तो A B को भेजना चाहता था, A ने पहले RTS भेजा, ठीक है, जब RTS भेजा तो C ने उसके रिस्पॉन्स में CTS भेजा, तो CTS उसके ट्रांसमिशन रेंज में जाएगा। ओके, हो सकता है यहाँ पर और एक टर्मिनल हो। ओके, D नाम का टर्मिनल हो या उस साइड में टर्मिनल हो जरूरी नहीं सबके सब लाइन में बैठे एकदम। ओके, हो सकता है आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर द मोबाइल टर्मिनल्स। ओके, एंड दे कैन बी प्लेस एनीवेयर। ओके,
सो अगर फॉर एग्जांपल एक टर्मिनल यहाँ पर भी है, सो इट विल आल्सो रिसीव द सीटीएस सिग्नल बिकॉज दैट सिग्नल इज द ब्रॉडकास्ट सिग्नल। ओके, सो यहाँ पर आपका जो सीटीएस सिग्नल है दैट विल बी हर्ड बाय द सी आल्सो, द डी आल्सो, और जो भी आसपास में उसके ट्रांसमिशन रेंज में आ रहा है वो सबको मिलेगा सीटीएस। यानी कि indirectly we have informed all the other stations, indirectly we are informing all other stations that bhai B is now engaged with the A. Okay, so for 5 minutes, okay, for 5 minutes this B terminal is engaged with A. Okay, so A wants to send some data. अच्छा, उसके अंदर नेम ऑफ द सेंडर, नेम ऑफ द रिसीवर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन भी होता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इंफॉर्मेशन ऑल अदर्स विल कम टू नो दैट भाई सेंडर कौन है ए, रिसीवर कौन है बी। ओके, और ड्यूरेशन क्या है 5 मिनट्स। ओके, मतलब 5 मिनट तक इनको छेड़ने का नहीं, खत्म बात। जब कोई छेड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, so with the help of MACA in which we are having RTS, we are using the RTS and CTS signals. Okay, with the help of these signal we can easily resolve this issue. I hope this is clear to all, clear to all CTA। समझ में आ रहा है तो ओके, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। ठीक है, द थिंग्स आर वेरी क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई साहब इसका, सीटीएस कभी कभी सीधा बोल देगा आरटीएस सीटीएस के थ्रू कैसे सॉल्व होता है, या हिडन टर्मिनल एंड एक्सपोज टर्मिनल का प्रॉब्लम मैका के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूरा स्टार्ट करो, हिडन टर्मिनल क्या होता है, एक्सपोज टर्मिनल क्या होता है, डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो, मैका बताओ, मैका में क्या करने वाले हैं, डोमेन कौन सा है, वायरलेस डोमेन है, उसके अंदर फिर आपका मैका में आप लोग कैसे आरटीएस सीटीएस करेंगे, फिर डायग्राम बनाओ। मैंने कहा 2-2 3 डायग्राम आपके बन जाएंगे। ओके, सो एक लेंथी आंसर रहेगा 10 मार्क के लिए। ठीक है, आई शो विल गो थ्रू दी क्वेश्चंस आल्सो, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं देखेंगे, पेपर एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। विल मूव टू दी नाउ एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सो ये हो गया भाई साहब हमारा hidden terminal problem. So I've given the heading hidden terminal problem solution using MACA. Okay, ये भी उसका पूरा है explanation है। Still the collision can occur. तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज है ना, क्या बोलते हैं उसको, 0.00001% की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, एंड वी डोंट कंसिडर एक्चुअली दोस पॉसिबिलिटीज, बट स्टिल वी हैव टू कीप ऑल दीज पॉसिबल थिंग कहीं ना कहीं कोने में इसको रखना पड़ती है, बिकॉज द क्वेश्चन में आस्क ऑन दिस आल्सो। स्टिल कोलिजन कैन अकर ड्यूरिंग द सेंडिंग ऑफ आरटीएस। भाई साहब दोनों ने आरटीएस एक सेम टाइम पे भेजे, क्या कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं तो उनका भी कोलिजन होने के चांसेस है। तो बोथ ए एंड सी कुड सेंड एन आरटीएस, एन किसने लिख दिया है, both A and C could send RTS that collide at B। तो RTS सिग्नल भी भेजे एक साथ में, एक ही टाइम पे भेजे, दोनों को पहुंचने में एक टाइम लगा, तो बेचारे वो भी जाने वाले चांसेस। सो दीज आर सम माइनर पॉसिबिलिटीज, 0.0000001% में होती है। RTS is very small compared to the data transmission, so the probability of the collision is much lower। बहुत कम चांसेस है भाई साहब। ठीक है, we resolve this contention and acknowledge only one station in the CTS। तो आगे चल के कोई ना कोई वापस से रिसेंड कर ही लेगा, तो आपका भाई साहब बी किसी एक को ही करने वाला है। ठीक है, सो नो ट्रांसमिशन इज अलाउड विदाउट एन अप्रोप्रिएट CTS। जब तक CTS नहीं मिलेगा, जब तक कि वहाँ से क्लियर टू सेंड रिसीवर की तरफ से आपको नहीं मिलेगा, यू आर नॉट अलाउड टू सेंड द डेटा। ओके, तो जब तक आपको नहीं मिलेगा CTS, इन्हें सेंडर को जब तक नहीं मिलेगा, सो यू आर नॉट अलाउड टू सेंड द डेटा सिग्नल। Sorry. Okay, so moving to the exposed terminal problem. The next problem we were facing regarding this one only, that exposed terminal। exposed terminal का सीन पता है आपको, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। Can MACA also helps to solve the exposed terminal problem? उसका सीन है, remember B wants to send data to A, वापस से याद करो A B C। ओके, तो बी हमारा ए को सेंड कर रहा था और हमारा सी किसी और दूसरे को सेंड कर रहा था। ओके, सो रिमेंबर बी वांट्स टू सेंड सम डेटा टू ए एंड सी टू समवन एल्स। सो इट वाज द सिनेरियो इन द एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम, बट सी इज
पोलाइट इनफ टू सेंस द मीडियम। जो हमारा सी भैया जो है तो बहुत शरीफ है, ठीक है। तो किसी दूसरे को भी सेंड कर रहा है तो क्या हुआ, पहले मीडियम को सेंस करेगा, ओके। तो जब मीडियम को सेंस किए, जब हमारे सी भाई साहब ने जब मीडियम को सेंस किए तो पता चला कि मीडियम बिजी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसमिशन रेंज में आ रहे थे, बी की ट्रांसमिशन रेंज में आ रहे थे और बी ही सेंड कर रहे हैं। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, थोड़ा सा एक बार वापस देख लेते हैं, ओके। सो जस्ट हाँ, कर ही रहते, पिछला डायग्राम देख लेंगे, ओके। सो ये था हमारा सब कुछ। हाँ, एक्सपोज टर्मिनल में क्या इशू था, हमारा बी जो है ना वो ए को सेंड कर रहा था, ओके। एंड यू नो बी जो हमारा टर्मिनल है इट इज इन द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब ये है कि ए एंड सी कम्स अंडर द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ बी। ए और सी हमारे बी की ट्रांसमिशन रेंज में आते हैं। तो जब बी ने सेंड किया ए को, तो ये बात मोहल्ले में पूरी जगह फैल गई। कहाँ तक फैल गई, ये नाके तक पहुंच गई, यानी ए तक पहुंच गई और यहाँ से पहुंच गई हमारे कालसेकर कॉलेज के हाईवे तक, ठीक है। तो ये बात पूरी सबको पता चल गई कि बी ए को डेटा सेंड कर रहा है, बिकॉज यूर बी हैज अ ट्रांसमिशन रेंज अप टू ए एंड अप टू सी ऑल्सो, गेटिंग द थिंग्स, ओके। मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए। और C wants to send some or to transmit the data to the terminal who is in the outside range, जो कि D है, ठीक है। तो हमारा C किसको सेंड कर रहा है, D को सेंड कर रहा है, ओके। सो C हमारा D को सेंड कर रहा है, B हमारा A को सेंड कर रहा है। बट जब C हमारा इस यू नो बहुत पोलाइट है, हमारा बहुत शरीफ है, सो व्हेन इट सेंस द मीडियम, जब C ने मीडियम को सेंस किया, जब इसको सेंस किया तो पता चला कि भाई यहाँ तो हंगामा मचा हुआ है, बिकॉज बी ए को सेंड कर रहा है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है कि बी ए को सेंड डेटा सेंड कर रहा है। तो सी को पता चलेगा कि बी ए को डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, बिकॉज उसको पता चलेगा। और जब पता चलेगा तो फिर ये क्या नहीं कर पाएगा, सी अपना डी को नहीं सेंड कर पाएगा, बिकॉज उसने मीडियम को सेंस कर लिया है, ओके। So when C senses the medium, then it found that the station B is involved, या फिर आपका जो मीडियम है वो अभी बिजी है फिलहाल। इन शॉर्ट द मीडियम इज बिजी। आपको पता है कि जब अगर मीडियम बिजी हो तो कोई भी टर्मिनल कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये भाई साहब हमारी चुपचाप बैठ गई, हालांकि उसको बी से कुछ भी काम नहीं था, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठ गए, बिकॉज इसको भेजना था डी को, लेकिन फिर भी हमारा सी चुपचाप बैठ गया, ओके। तो ये हमारा सीन था इसके अंदर। हाउ वी कैन सॉल्व दिस इशू यूजिंग मैका, लेट अस सी। सो हम लोग कहाँ पहुँच गए भैया, सॉरी। अच्छा, हिडन स्टिल कोलिजन, ओके। सो but she is the polite enough to sense the medium before transmitting and sensing a busy medium caused by the transmission from the B. So C differs, although C could never cause a collision at A. Okay, हम लोग को पता है कि C का collision नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी C क्या कर रहा है, it is waiting. Okay, चलो। सो विथ मैका बी हैज़ टू ट्रांसमिट एन आरटीएस, वही हमारा आरटीएस सीटीएस का फंडा यहाँ पर भी अप्लाई करो, यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा आराम से और कोई इशू नहीं आएगा, ओके। सो विथ मैका बी हैज़ टू ट्रांसमिट एन आरटीएस फर्स्ट कंटेनिंग द नेम ऑफ द रिसीवर ए एंड द सेंडर बी। तो भाई साहब हमारे बी ने, यहाँ पर मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ तो अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर पास डायग्राम है नहीं एक्चुअली, तो मैं डायग्राम में ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है। सो ये ए है आपका, तो मैं लिख भी देता हूँ भाई, ए है, this is my B and this is my C, okay, A, B and C. So first of all, according to Maca, your B wants to send or transmit some data to A. तो ये सबसे पहले क्या सेंड करेगा, सबसे पहले RTS सेंड किया, ठीक है, RTS सेंड किया A को, ओके, ये क्लियर है। उसके बाद में जब A से जब CTS, बिकॉज A इज द रिसीवर ना एंड B इज द सेंडर, तो A से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से CTS मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही CTS मिलेगा, तो CTS मिलने के बाद में आपका B क्या कर सकता है, आप ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। C डज नॉट रिएक्ट टू दिस मैसेज एज इट इज नॉट द रिसीवर, तो ये इसकी जो रेंज है वो यहाँ तक तो है नहीं, तो CTS C को नहीं मिला है अभी। C does not react to this message as it is not the receiver, but A acknowledge using a CTS which identifies B as the sender and A as the receiver of the following data transmission. So in the same way, what will happen?
C does not receive the CTS and conclude that A is outside the detection range. तो हमारे C को पता ही नहीं चलेगा कि भाई कुछ हो रहा है, ओके। C को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है, बिकॉज ये इसका जो CTS है, A का जो CTS है वो खाली B तक पहुंचेगा। आपको पता है इसकी जो रेंज है, A की रेंज कहाँ तक है, A की रेंज है यहाँ तक, ओके, A की रेंज यहाँ तक है और B की रेंज चलो यहाँ तक है। मैं इसको थोड़ा सा, मतलब ये पूरी रेंज है, ओके, ये पूरी कंप्लीट रेंज है और सी की रेंज आपकी यहाँ तक है। मतलब आपका बी ए और सी दोनों को पहुँच सकता है, लेकिन आपका सी बी तक पहुँच सकता है, ए तक नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। सो व्हेन ए स्टेशन, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा आप लोग को। चलो ठीक है, ओके। So B is my sender and A is my receiver. So B will send the RTS signal, R लिखा हुआ मैंने, A will send the CTS signal. When A will send the CTS signal, then this signal will be heard by B only, not C. तो ये जो CTS सिग्नल है वो खाली B को मिलेगा, A को नहीं मिलेगा। जब C को मिला ही नहीं ये सिग्नल, तो C क्या समझेगा कि भाई कोई ट्रांसमिशन चल ही नहीं रहा है, ओके। तो C समझेगा कि कोई ट्रांसमिशन चल ही नहीं रहा, बिकॉज नाउ वी आर फॉलोइंग द मैका, ठीक है। मतलब जो आरटीएस और सीटीएस सिग्नल फॉलो हो रहे हैं तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सो ये जो सीटीएस सिग्नल है इट विल बी हर्ड बाय बी टर्मिनल, ओके, बी टर्मिनल नॉट बाय सी। तो सी को जब सीटीएस सिग्नल मिला ही नहीं, तो वो क्या समझेगा कि भाई ठीक है, मामला तो पूरा क्लियर है, और वो अपना ट्रांसमिशन, सी कैन स्टार्ट इट्स ट्रांसमिशन assuming it will not cause a collision at it, okay। So with the help of this RTS and CTS, we can also resolve the issue of the exposed terminal problem, ठीक है। सो ये जो CTS है आपका खाली B तक पहुंचेगा, C तक नहीं पहुंचेगा। जब C तक पहुंचा ही नहीं तो C को फिर मतलब कंफ्यूजन की बात ही नहीं, ओके। C के पास में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो उसको लगेगा कि भाई पूरा पूरा का मामला क्लियर है, ठीक है। जब उसको कोई सिग्नल ही नहीं मिला तो समझेगा कि पूरा मामला क्लियर है, एंड नाउ इट कैन स्टार्ट द ट्रांसमिशन, और ये समझेगा कि उसका कोलिजन होएगा नहीं, ओके। चलो अगर कभी ए की रेंज अगर कभी सी तक होती, ए की रेंज अगर सी तक होती, तो क्या होता, your C will also receive the CTS sent by the A, okay। So when C will receive when C would have received the CTS, then it will stop, ठीक है। उस टाइम पे वो स्टॉप कर सकता था, बट यू नो द रेंज है जो उसकी ट्रांसमिशन रेंज है, डायग्राम कहाँ है भैया, हाँ, जो रेंज है, तो रेंज इज अप टू बी ओनली। आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है, सो दैट इज अप टू बी। सो योर CTS विल बी हर्ड बाय बी ओनली, ओके। ये तो आपका हिडन का है। इसका डायग्राम अलग से आप लोग चाहे तो अलग से डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, जो डायग्राम मैंने अभी यहाँ बनाया हूँ, यहाँ जो बनाया हूँ, तो ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, ओके। फिर आप लोग यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, ये लोकेशन पे मेंशन कर सकते हैं, the CTS sent by A to B will be heard by B only, not by the C, okay। If it is not heard by C, then C will understand that C will assume that it will not cause a collision at A, okay, or at any other point it will not cause a collision, and I can start the transmission, okay। So simply C will understand and will assume that thing, okay। So this is how we can solve the exposed terminal problem, okay। So these two problems can be easily solved with the help of MACA, that is multiple access with collision avoidance, okay। So these are two। अच्छा, regarding that हाँ, regarding that near and far terminal problem, so that's क्या बोलेंगे इसको, इसका तो कोई solution मतलब है, लेकिन मैंने इसको mention नहीं किया हूँ बिकॉज वो काफ़ी शॉर्ट था। आपके जो नियर एंड फार टर्मिनल प्रॉब्लम्स है, ये तो आपके एक्चुअली ना आपके जो मोबाइल्स है, आपके मोबाइल नोड है, आपके जो मोबाइल टर्मिनल्स है, उनके ऊपर डिपेंड है, ओके। कौन सी पोजीशन पे है और कौन सी लोकेशन पे है, तो वो लोकेशन के हिसाब से वो इम्पैक्ट करता है। उसका कुछ थोड़ा पार्ट है, मैं कभी अगले लेक्चर में या कभी आऊँगा तो आपको इसको चलो वो बता दूंगा, ठीक है। सो द मेन फोकस एग्जाम में नियर एंड फार टर्मिनल का क्वेश्चन नहीं आता है, हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। And how you can resolve it using the MACA, that is RTS and CTS signals, okay। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, and the next topic after this one is मोबाइल IP, okay। So this is also very important topic। मोबाइल IP अब बहुत लंबा चलेगा मोबाइल IP। So इसके गोल्स है,
और उसके सॉल्यूशंस है, रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है, उसके डायग्राम्स है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो वो भी समझने में हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। So from next lecture we'll start with mobile IP. Let me see. I have some. If I'm having some question paper of MCC and how the question is asked. Let me see. MUQP 18 19 के पेपर्स में है नहीं। काम करते हैं, ये पेपर एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेन द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड मैक इन वायरलेस कम्युनिकेशन। बोलो, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है भाई साहब। तो स्पेशलाइज मैक कौन है आपका? मैका है, ठीक है। अब मैका क्या क्या काम करता है, तो आप पहले प्रॉब्लम बताओ। वायरलेस कम्युनिकेशन में, वायरलेस डोमेन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग? बोलो, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? दैट इज नथिंग बट द हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। जब हमें फेस करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज मैक की जरूरत पड़ेगी। और स्पेशलाइज मैक कौन है? मैका, ठीक है। और वो मैका के अंदर कौन से दो सिग्नल यूज करते हैं? आरटीएस एंड सीटीएस। वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे 10 मार्क के लिए। आपके क्वेश्चन, आपके पूरे 10 मार्क्स। देखो, जीएसएम आर्किटेक्चर 10 मार्क के लिए, लूट लो इसको भी। जीपीआरएस नेटवर्क नोड, जीपीआरएस के बारे में हम लोग ने पढ़े थे। जीपीआरएस के अंदर दो मेन नोड होती है, एक जीजीएसएन एंड एसजीएसएन, दो नोड होती है। एंड चलो, हमारा हमारा जो हमारा काम का, तब हमको पहले मिल गया। ठीक? ऐसे 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 एक बार जो है ना क्वेश्चन पेपर में देख लेने का, सो दैट विल आल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वेश्चन, क्या भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, व्हाट इज हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम, डिस्कस सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, है क्वेश्चन एग्जाम में। तो दूसरे पेपर में भी आ गए क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन शॉर्ट हाउ हिडन एक्सटेंशन प्रॉब्लम इज अवॉइडेड इन वायरलेस लैन। अब ये क्वेश्चन ना एक्सप्लेन अटेम्प्ट क्वेश्चन वन इज कंपलसरी। कितने करना है इसमें से? 5 क्वेश्चन करना है। कितने दिए हैं? चलो बहरहाल जो भी है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन, ठीक है। तो वायरलेस डोमेन के अंदर हाउ यू कैन अवॉइड हिडन स्टेशन प्रॉब्लम, एक ही पूछा है, 10 मार्क के लिए पूछ डाला, ठीक है। ये होते हैं कुछ कुछ। अरे देखो, आपका मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल, वो बताया था ना आपको मैंने, कैसे मोबाइल से कैसे कॉल ओरिजिनेट होता है। कॉलिंग के अंदर जीएसएम कॉलिंग, वो भी एग्जाम में बहुत पूछता है। तो दिस इज द थर्ड पेपर, एंड इन थर्ड पेपर ऑल्सो ये क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ, एक्सप्लेन हिडन एंड एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम इन डब्ल्यू लैन। आई थिंक वही क्वेश्चन, वही पेपर है, लेकिन है मे 14 का है। मोबाइल एजेंट्स वायरलेस में, इसमें नहीं पूछा है, देखो। तो नहीं पूछा इसके लिए, एक आध जगह तो कम हो ही सकता है। तो मतलब देखा जाए ना, ज़्यादातर टाइम पे पूछता ही है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं पूछा है। वायरलेस लोकल लूप आर्किटेक्चर नहीं, नहीं है। और दो भी 19 के 20, अभी 19 के पेपर तो देखे नहीं हम लोगों ने। इसमें भी नहीं दिख रहे, लेकिन रिसेंट पेपर में था। स्टार्टिंग के 3 4 में तो हमको दिख गया है, मतलब इसको हम लोग एज अ इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। ये मोबाइल आईपी के क्वेश्चन आए हैं, मतलब उसी में से है, लेकिन दूसरा दूसरा टॉपिक लिया है इसमें। और चलो, इसमें नहीं है, बहरहाल कोई बात नहीं। तो ये स्टार्टिंग के हम लोग को 3 4 में दिखा है, 4 में नहीं दिखा है, तो चलो मतलब पॉसिबिलिटी कम हो गई, लेकिन ये स्टार्टिंग के पेपर्स है, ठीक है। और ये 14 15 16 ये हम लोग के स्कीम वाले नहीं है। अभी हमारी जो स्कीम है वो लास्ट ईयर ही फर्स्ट टाइम था। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था, मतलब लास्ट ईयर ये जो आपका स्कीम है चॉइस बेस्ड, उसका फर्स्ट टाइम था। अभी आप लोग दूसरी बार मतलब दे रहे हैं, ठीक है।
तो लास्ट के जो 2 पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट का 1 पेपर, 2 पेपर वो इंपॉर्टेंट है। मई 18 तक है, उसके बाद में दिसंबर 18 रहेगा, तो नवंबर दिसंबर 18, उसके बाद में फिर और एक रहेगा, उसके बाद में और एक रहेगा इसमें। तो बहरहाल दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड यू नो द कॉन्सेप्ट क्लियरली, देन यू कैन इजीली write down the answer of these questions also. So I hope this matter is clear to all regarding hidden and exposed terminal problem. Okay, start marking your attendance.